جان لیے چلتے ہیں جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ نوٹس لینا چاہیے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، آپ ہیومن رائٹس باڈی کے ممبر ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے جنیوا میں ہیومن رائٹس کاؤنسل میں خود گیا، اور میرے بعد ڈاکٹر شرین مزاری صاحبہ بھی تشریف لے گئیں، اور ہم نے پوری شد و مت سے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں انہیں اجاگر کیا۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ان مراسلوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ہماری جنیوا کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے، ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں مشیل بیشلے، وہ اپنی نئی رپورٹ جو ہم توقع کر رہے ہیں 2020 میں آنی چاہیے، وہ رپورٹ پبلش کریں گی اور حقائق لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دبئی میں بہت سارے پاکستانی بے روزگار ہو چکے ہیں اور انتظار میں ہے کہ کب اپنے وطن واپس جائیں، تو یہ عمل جو ہے وطن واپسی کا کب مکمل ہوگا اور ان کے بارے میں کیا پلان ہے، کوئی ان کو جاب وغیرہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کرونا وائرس سے جو متاثر ہیں لوگ، وہ تو پوری دنیا متاثر ہے۔ پاکستانی میں عرض کر رہا ہوں نا، آپ نے سوال کر لیا، جواب لے لینا۔ بیٹا ایک منٹ ٹھہر جائیں، اس پر رہنے دیں، بات کرنے دیں۔ کرونا وائرس سے ساری دنیا متاثر ہے، یقیناً پاکستانی بھی متاثر ہے، دبئی میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے، اور ممالک میں ہے۔ ان کو واپس لانے کی ہماری جستجو ہے، کوشش شروع ہے۔ ہزاروں کو ہم لا چکے ہیں، ہزاروں کو، اور ہزار ہاں ابھی ہیں جنہوں نے واپس آنا ہے۔ ہماری طرف سے رکاوٹ نہیں ہے، صوبائی حکومتوں کا تعاون درکار ہے۔ میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے درخواست کر رہا ہوں کہ کل کا اجلاس ہے جس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کریں گے، اور وہ سارے وزرائے اعلیٰ اس میں موجود ہوں گے، بشمول گلگت بلتستان، بشمول وزیر اعظم آزاد کشمیر۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیلف کوارنٹین کی اجازت دی جائے تاکہ وہ پاکستانی جو باہر سٹرینڈڈ ہیں ان کو ہم تیزی سے واپس لا سکیں۔ بہت سے لوگوں کے ویزے ختم ہو چکے ہیں، ہم ان کے ویزوں کی ایکسٹینشن کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو تنگ کمروں میں 8-8 10-10 پاکستانی رہ رہے ہیں، اور کرونا کا جو ہیومن کانٹیکٹ سے ٹرانسمیشن ہوتا ہے وہ اس خطرے میں ہے، انہیں محفوظ کیا جائے۔ وفاقی حکومت جب تک صوبائی حکومتیں تعاون نہیں کریں گی یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کر کے اسلام آباد کے بعد لاہور، ملتان، فیصل آباد، پشاور، کراچی کے ایئرپورٹس کو کھلوایا۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں پنجاب صوبائی حکومتوں کے، انہوں نے مہربانی فرمائی، لیکن آج بھی وہ اپنی کیپیسٹی میں اضافہ کریں تاکہ ہم زیادہ پاکستانیوں کو جلد از جلد واپس لا سکیں۔ دیکھیے، بجٹ آ رہا ہے، اس وقت جو مالی مشکلات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان کی جو برآمدات ہیں وہ کرونا کا جو ایک منفی امپیکٹ ہوا ہے گلوبل اکانومی پر، وہ پاکستان پہ بھی یقیناً ہوا ہے۔ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ گری ہیں، ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ گری ہیں، ہمارے جو باہر لوگوں کے روزگار کے مواقع تھے وہ سکڑے ہیں۔ یقیناً ہمارے بجٹ پہ بھی اس کا بوجھ پڑے گا۔ ہماری حکومت کی کوشش ہے کہ ہم ان مالی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے جو اس ملک کا متوسط اور غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والا طبقہ ہے، ان کے لیے جو رعایت ہم دے سکتے ہیں ہمیں دینی چاہیے۔
हमने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए 1,20,00,000 कुंभों को 144 अरब रुपया शफाफ तरीके से तकसीम किया। हमने वज़ीर आज़म ने अपने पोर्टल के ज़रिए दरख्वास्तें तलब की हैं उन बेरोज़गारों की जो कोरोना की वजह से बेरोज़गार हुए हैं, ताकि उनको भी कैश असिस्टेंस दी जा सके। और हम बजट में भी कोशिश कर रहे हैं, बजट से पहले भी कोशिश की है और बजट में भी कोशिश करेंगे कि जो रिलीफ हो सकता है, लोगों पे बोझ में इजाफा ना हो। पेट्रोल की कीमत कम की, डीज़ल की कीमत कम की, जो बिजली के बिल हैं उनको मौखर किया, उनको स्टैगर किया, और इंशाल्लाह मज़ीद पैकेजेस दिए, कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया। एग्रीकल्चर के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि पैकेज आए तो कि इकॉनमी को जिसे कहते हैं ना स्टिमुलस दिया। 1.2 ट्रिलियन रुपीस का पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्टिमुलस इकोनॉमिक पैकेज दिया। तो इंशाल्लाह बजट में भी जो वसाइल इजाज़त देंगे हतुल वसा कोशिश करेंगे। आप इनके बात करते हैं। पहली बात मैं समझ गया, पहली बात हुकूमत गुरेज़ान नहीं है। ये पहली हुकूमत है जिसने कमीशन की रिपोर्टों को दबाया नहीं है। पाकिस्तान में रिपोर्टों को दबाने की आदत थी। ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है। पहली हुकूमत है जिसने इम्तियाजी सलूक नहीं बरता, ये मेरा है, ये तेरा है। जो जो उसकी जद में आया है, हक़ाइक़ को सामने कौम के रखा है। फोरेंसिक सुन तो लो ना मेरे भाई, फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कोई इम्तियाजी सलूक नहीं होगा, कोई पीटीआई, नून, पीपीपी इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। एफबीआर हरकत में आएगा, आपका भला एफआईए हरकत में आएगी, और जितने हुकूमती इदारे हैं जिनकी कलूजन की वजह से पाकिस्तान के आम शहरी को महंगी चीनी मिली और पाकिस्तान के काश्तकार को कम निर्ख मिला, वो हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। अब इनसे इसके पहले इनके सवाल करें जी। सर, चीन और भारत आमने सामने हैं, लद्दाख के हवाले से सीपैक क्या मुतासिर करने की इस आदेश में भारत में क्या दोनों एटमी। पहली बात मैं अर्ज कर दूं, सीपैक इंशाल्लाह महफूज है। भारत को पसंद हो या न हो, किसी और मुल्क को पसंद हो न हो, पाकिस्तानी कौम का इस पर इत्तफाक है कि सीपैक एक गेम चेंजर है। हमने इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक पहुंचाना है। इस पे एक नेशनल कंसेंसस है। हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे हुकूमत है या अपोजिशन है, इस पर मुत्तफिक है। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक लद्दाख का ताल्लुक है, हिंदुस्तान ने जानते हुए कि वो एक मुतनाज़ा इलाका है, उन्होंने वहाँ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस का आगाज़ किया। उनका एक 2022 का प्लान है। उस प्लान के ज़रिए उनने वहाँ सड़कें और एयर स्ट्रिप्स बनाने का एक मंसूबा बनाया है, जिस पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चीन ने उन्हें बारहा कहा है कि आइए बैठकर गुफ्त व शुनीद से जो हमारे मेकनिज़म्स इन प्लेस हैं, उन मेकनिज़म्स को बरूए कार लाते हुए मसले को हल करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान ने चालाकी से वहाँ काम करने की कोशिश की, एक्सपोज हो गए, पकड़े गए, दुर्गत बनी, और अब खामोशी से दुम दबा के बैठ गए। सर, जैसे जैसे शहबाज शरीफ का घेरा तंग होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके अपोजिशन लीडर जो सिंध में हैं वो उनके खिलाफ घेरा तंग करते जा रहे हैं। तो क्या अगर असम्बलियों से अपोजिशन लीडरान का किरदार खत्म हो गया तो मुस्बत तरीके से कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह किरदार ख़त्म नहीं होगा, आप परेशान ना हो इंशाल्लाह। जी, जो बाटा की तरफ से रिलीफ, आप दोनों की तरफ से रिलीफ जो दिया गया है 300 यूनिट, उसके ऊपर जो है वो मिलेगा। कितना % तबका है जो उसके नीचे आता है? एक सेकंड,
टोटल बिजली का कंज्यूमर है ना, उसका कितना परसेंटेज उस कैटेगरी में आता है? बताएं ना मुझे, परसेंटेज बताएं कितनी है? तकरीबन 20% है जो 300 पे आता है, बाकी यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप अपने आदाद और शुमार चेक कीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स इन दैट कैटेगरी, मेजॉरिटी। भाईजान जरा थोड़ी तहकीक कर ले, आप तहकीक कर लें, आप फिगर आपके सामने आ जाएंगे, बापटा से पूछ लें। कोरोना वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। पाकिस्तान में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई हम एंगी नहीं आ रही इस पर कि यकजा होकर इसका मुकाबला किया जाए। इस पर भी हुकूमत, हम आज भी, मैं तरी साहब नहीं, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हमारा इरादा नहीं है। अपोजिशन ने तकाजा किया कि कोरोना पर असेंबली का इजलास बुलाया जाए। मैंने खुद वज़ीर आज़म की खिदमत में गुजारिश की और हमने इजलास बुलाया, और इजलास में हमने कहा कि 2.5 महीने 2 महीने आपने हुकूमती पॉलिसी जो तनकीद करनी थी आपने की है, आप कीजिए, वो आपका हक है। अपोजिशन का काम है तनकीद करना, कोई बात नहीं, हमें हौसला है सुनने का, आप ज़रूर तनकीद कीजिए, लेकिन 2.5 महीने की तनकीद के बाद कोई तजवीज़ भी पेश कीजिए। तो आपने एक, भाईजान सवाल तो मुकम्मल होने दिया करो यार, कहाँ से ताल्लुक है आपका? हाँ, मुल्तान से तो है, किस रॉयल से? तो रॉयल हाथ जरा काम कर दे रहे यार, हाथ हौला कर दे भाईजान। अच्छा, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि हमने कहा कि तनकीद तो आपने कर दी, कुछ तजवीज़ भी दे दो ना, तजवीज़ दें, तनकीद ज़रूर करें। वो टॉक शोज़ मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ करें। अगर आपको उससे तसल्ली होती है, रोज़ आप तनकीद करें, लेकिन असेंबली में खड़े के कोई तजवीज़ तो लाएं। एक तजवीज़ नहीं लेकर आए, एक तजवीज़। हमने उनके साथ हमने फोरम्स बनाए हैं, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का फोरम है, उसमें सबको नुमाइंदगी दी गई है। पीपल्स पार्टी उसमें है, नून लीग उसमें है, पीटीआई उसमें है, सब उसमें, सब इदारे उसमें हैं। एनसीओसी का फोरम बनाया है, सब चीफ सेक्रेटरीज वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपके पास तजवीज़ है, आप लेकर आएँ। वज़ीर आज़म हर आपकी जायज़ तजवीज़ को अहमियत देंगे, लेकिन सिर्फ आप तनकीद ना खेलें ना, तजवीज़ भी खेलें। ये बताइएगा कि आपके जो क्रेडिट जा रहे हैं, मोटरवे हो गया, एटमी धमाके हो गया, आप सीपैक का भी कहते हैं क्रेडिट हो जाता है, ये क्रेडिट कब खत्म होगा, किस तरह खत्म होगा? आज कोई कहते हैं क्रेडिट हमें जा रहा है। यार देखिए, वो सियासत है भैया, वो हर कोई करता है। पहली बात ये है, एटमी धक्का, अभी आपने यौम तकबीर मनाया 28 तारीख को, पूरी कौम को मुबारक हो। तारीख़ इस बात की गवाह है, पाकिस्तान अगर एटमी क़ुव्वत बना है तो उसमें एक फ़र्द का हाथ नहीं है, उसमें फ़ैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था, और यहाँ मुल्तान में किया था, मेरे मामू के घर पे, मुल्तान में वाइट हाउस में मेरे मामू के घर पे फ़ैसला हुआ था पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाने का। जो डॉक्टर कदीर खान साहब हयात हैं, उनसे पूछ लीजिए, मुल्तान को ये शर्फ हासिल है, यहाँ ये फ़ैसला हुआ था। भुट्टो साहब के बाद और हुकूमतें भी आईं, हर हुकूमत ने उसको आगे बढ़ाया, हर हुकूमत ने। ज़ियाउल हक साहब आए, जुनेजो साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए, जितनी हुकूमतें भी आईं, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। अफवाज पाकिस्तान ने उसकी हिफाजत की, और सब ने मिलकर ये कामयाबी हासिल की। क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट पूरी कौम को जाता है, पाकिस्तान के साइंसदानों को जाता है, अफवाज पाकिस्तान को जाता है। थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये पहली हुकूमत आई है जिसने किसी कमीशन की रिपोर्ट को दबाने के बजाय उसे पब्लिक किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस बार कोई ऐसी तफरीक नहीं की कि ये कोई हुकूमती फ़र्द है या अपोजिशन से ताल्लुक़ रखता है। क्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखते हैं। साथ ही उन्होंने अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तनकीद तो होती है लेकिन तजवीज़ सामने नहीं आती।
سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی نے کہا ہے کہ 9ویں اور 11ویں جماعت کے طلبہ کو بغیر کسی پرسنٹیج کے اگلی کلاسز میں پروموٹ کر دیا جائے گا، جبکہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے بچوں کو پچھلی کلاس کی پرسنٹیج پر 3